Hello students, I am Rekha Tawar and today we are going to read third lesson of your Beehive book. The name of the lesson is The Little Girl and the story tells us about the relationship between a daughter and her father. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. The writer believes that this story probably finds an echo in every home. Perhaps in every home there is a child who feels about his or her father in the same way as the girl in this story felt. But the story also tells us how the feelings of this girl change for her father with the passage of time, where and when she starts understanding him later on. Similarly, we also find that sometimes we feel that why parents scold us so much, why they keep nagging, and why they always rebuke us about this or that. But later on, when we grow up, we start understanding the reason behind their actions. So, let us start the story. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी सी बच्ची के लिए he was a figure to be feared and avoided. वो पर्सन एक ऐसे फिगर थे जिनसे feared जिनसे डरा जाना चाहिए and avoided और जिनसे बच कर रहना चाहिए. उस बच्ची को ऐसा लगता था उसके फादर को देख के कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनसे डरना ज़रूरी है और जिनसे वो शी ऑलवेज kept away. अवॉइडेड मीन्स टू कीप अवे, तो वो उनसे दूर ही रहना चाहती थी. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. Casual means without any emotions. Every morning, हर सुबह before going to work, अपने काम पर जाने से पहले he came into her room, वो उसके कमरे में आते and gave her a casual kiss, और उसे किस करते. To which she responded, और उसकी किस के रिस्पॉन्ड में responded, उसके जवाब में with goodbye. She said goodbye father, वो कहती goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. And oh, और फिर there was a glad sense. Glad means happy. Sense of relief. Relief means comfort. राहत मिलना. और उसे बड़ी खुशी भरी राहत मिलती थी when she heard, जब वो सुनती थी किस चीज़ को, the noise of the carriage, उस कैरेज के शोर को. कौन सी कैरेज क्या होती है? वो कैरेजेस हॉर्स कार्ट used for carrying people, which was used earlier in earlier times. तो उस कार्ट में बैठकर उनके जाने की धीमी धीमी जो घाट के धीमे होने की आवाज़ जो सुनाई देती थी उस डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबे रास्ते पर, तो उससे उसे बड़ी रिलीफ, बड़ी कंफर्ट वाली फीलिंग महसूस होती थी. In the evening, when he came home, she stood near the staircase. Staircase क्या होता है? सीढ़ियों के पास.
and heard his loud voice in the hall. और उनकी लाउड वॉइस वो सुनाई देती इन द हॉल में। तो शाम को जब फादर घर पर आते तो वो आकर हॉल में बैठते थे और उस समय शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वो स्टेयर केस के पास जाकर खड़ी रहती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी ऊंची आवाज़ को सुनती। Perhaps the reason behind her fear was the loud voice of her father. शायद उसके फादर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलते थे जिससे वो बेचारी डर जाती थी। तो वो वहाँ से उस आवाज़ को सुनती, और वो आवाज़ क्या कह रहे होते थे वो उस आवाज़ में, Bring my tea into my drawing room, into the drawing room. Hasn't the paper come yet? क्या कह रहे होते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, और क्या अभी अखबार नहीं आया है? मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर। मदर, बाहर जाओ और देखो कि क्या मेरा पेपर आ गया है। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। तो उनके आते ही घर में शोर शराबा शुरू हो जाता था। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और फिर उसकी मदर उसे आवाज़ लगाती, केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन काम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अब मदर चाहती थी कि बच्ची फादर के साथ मिक्सअप हो, तो वो उसे आवाज़ लगाती कि केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, तुम अच्छी बच्ची हो ना, तो नीचे आओ एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और फादर के बूट्स को उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्लोली, धीरे धीरे वो लड़की उन स्टेयर्स से नीचे उतर कर आती। स्लिप डाउन, कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। उसका मन नहीं होता था लेकिन वो धीरे धीरे आती थी वहाँ से। मोर स्लोली, और उससे भी धीरे, अक्रॉस द हॉल, हॉल को क्रॉस करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के डोर को ओपन कर देती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over from them in a way that was terrifying to the little girl. By that time he had his spectacles on. He had his spectacles on means अपने चश्मा पहन लेते थे। And looked at her over them, और उनके ऊपर से वो उन्हें ऐसे देखते, that the in a way that was terrifying to the little girl. वो इस तरीके से देखते थे कि उस बेचारी बच्ची को तो डर ही लग जाता था। एक्चुअली वो तो सिर्फ आराम से देख रहे होते थे, लेकिन लड़की के मन में इतना डर है कि उसे ऐसा लगता था कि ये डर लग रहा है। और वो स्पेक्टिकल्स के ऊपर से क्यों देखते थे? क्योंकि शायद उनकी नज़र, नज़दीक की नज़र कमज़ोर थी वो चश्मा पहन के अखबार पढ़ रहे होते थे, दूर की चीज़ के लिए उन्हें उनके ऊपर से देखना होता था। As sometimes you must have seen some teacher or some other person doing that. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? और अब जब वो डरते डरते वहाँ पहुँचती तो क्या होता, उसके फादर उससे पूछते, वेल केजिया, कि अरे केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और ये मेरे बूट्स उतारो, टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर लेकर जाओ। और फिर वो उससे पूछते, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज अच्छी बच्ची रही? आई डोंट नो फादर। और जब फादर उससे पूछते तो लड़की इतनी डरती थी उनसे कि वो ठीक से बोल नहीं पाती। वो क्या कहती, डोंट नो फादर, पता नहीं फादर। अब फादर को वो बताते समय इतना घबरा जाती थी कि उसे लगता था कि बोलते हुए वो हकलाना शुरू कर देती थी। You don't know? If you stuttered like that,
मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। और फिर जब वो इस तरह से हकलाती तो उसकी जो फादर हैं वो कहते, वो भी उसकी कॉपी करते, उसको निकल उतारते, डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट। स्टटर मीन्स स्टैमर, अटक अटक कर बोलना, एंड लाइक दैट। और वो कहते कि अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। अब आगे राइटर हमें उस लड़की के बारे में बताते हैं कि शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ वो कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, अब तो उसने हकलाना छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल फादर के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। और ऐसा किस लिए होता था? क्योंकि उस समय वो अपने फादर से इतना डर के इतना सही बोलने की कोशिश कर रही होती थी कि वर्ड्स गलत हो जाते थे। समटाइम्स फियर मेक्स यू फील लाइक दैट व्हेन यू डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स, समटाइम्स देन द मिस्टेक्स डेफिनेटली अकर। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। और वो लड़की अपने फादर से ही डरती थी, इसीलिए उनके सामने ऐसे करती थी। What is the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup to the table carefully. और उस बच्ची की इस तरह की हरकतें देखकर उसके फादर कहते, What is the matter? क्या बात है? What are you looking so wretched about? किस लिए इतनी उदास लग रही हो? wretched means unhappy. What are you looking so wretched about? क्यों इतनी उदास लग रही हो? Mother, I wish you taught this girl not to appear on the brink of suicide. और फिर वो अपनी मदर से कहते हैं कि मदर, काश कि तुमने, I wish means काश कि तुमने इस बच्ची को सिखाया होता कि हमेशा एट द ब्रिंक ऑफ सुसाइड ना दिखा करे। सुसाइड क्या होते हैं? टू अबाउट टू किल वन सेल्फ। तो वो चाहता था ब्रिंक मीन्स अबाउट टू, और सुसाइड इज़ टू किल वन सेल्फ, कि ऐसा ना दिखा करे ये कि जैसे अभी सुसाइड कर लेगी। हियर केजिया, फिर केजिया से कहते हैं, हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि मेरा ये टी कप वापस टेबल पे ले जाओ बड़े ध्यान के साथ। Now the writer tells the feelings of the girl about her father. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब बच्ची क्या सोचती थी? बच्ची सोचती थी he was so big, कि फादर कितने बड़े हैं। एक्चुअली द गर्ल इज़ स्मॉल, बच्ची छोटी है, और फादर तो एवरेज जैसे बड़े लोग होते हैं वैसे ही होंगे। लेकिन उस बच्ची को ऐसे लगता है कितने बड़े हैं। हिज हैंड्स, कितने बड़े बड़े हाथ हैं इनके, एंड हिज नेक, और कितनी बड़ी गर्दन है। स्पेशली इज माउथ व्हेन ही यॉन, ख़ास तौर से उनका मुंह जब वो यॉन करते हैं। व्हाट इज़ यॉन? यॉन मीन्स जम्हाई लेना। तो thinking about him alone was like thinking about a giant. Giant, what is the meaning of giant? Giant is gigantic man, कि बहुत बड़ा सा आदमी, कि उनके बारे में अकेले में बैठकर सोचने में ऐसा लगता था जैसे किसी जायंट के बारे में सोचा जा रहा हो। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सुबह शाम का ही मिलना होता था। उन संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर को, अब बाकी दिन का तो रूटीन बता दिया कि मॉर्निंग में फादर कैसे मिलते थे, इवनिंग में कैसे मिलते थे, लेकिन संडे को ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद द फादर एंड मदर। उसकी दादी माँ उसे ड्राइंग रूम में भेजती थी कि वो अपनी माँ और अपने पापा से बात कर सके।
बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन उस छोटी बच्ची को हमेशा उसकी मदर कुछ पढ़ती हुई नज़र आती। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट, और फादर क्या कर रहे होते थे? स्ट्रेच्ड आउट, स्प्रेड आउट, फैल कर बैठे हुए होते थे। ऑन द स्प्रेड आउट ऑन द सोफ़ा, सोफ़ा के ऊपर वो अपने आप को फैलाकर लेटे हुए होते थे। हिज हैंकचीफ ऑन हिज फेस, और अपने हैंकचीफ को उन्होंने अपने फेस पे रखा हुआ होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और अपने पैरों के नीचे एक सबसे अच्छा सा कुशन लगाया होता था। स्लीपिंग साउंडली, और वो साउंडली सो रहे होते थे, साउंडली गहरी नींद में। एंड स्नोरिंग, और खराटे ले रहे होते थे। स्नोरिंग मीन्स स्लीप नॉइजली, खराटे लेना। तो उस समय पे वो नॉइजली सोते हुए उसे नज़र आते थे जब वो संडे आफ्टरनून को उनके पास जाती थी। Here is a picture of the Sunday afternoon meeting on which Kezia used to go to meet her father and mother. Here the mother is shown. Here she is reading something, and father, his feet are on a cushion, and he has put his handkerchief on his face. So in this situation, how can the girl talk to the parents when the mother is reading and the father is lying in this position? तो बहुत ज़्यादा बातचीत संडे आफ्टरनून को भी नहीं हो पाती थी, कोई कंफर्टेबल टॉक उनके बीच में नहीं होती थी संडे आफ्टरनून को भी। अब क्या होता था, जब वो उन्हें ऐसे देखती तो वो क्या करती? शी सैट ऑन अ स्टूल, वो जाकर स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड देम, ग्रेवली वॉच्ड देम, और वो उनको बड़ा ही सीरियसली, ग्रेवली इज सीरियसली, वॉच्ड देम, उन्हें वॉच करती रहती, देखती रहती। अंटिल ही वोक, और कब तक देखती रहती? जब तक कि वो उठ नहीं जाते। एंड स्ट्रेच्ड, और अपने आप को स्ट्रेच कर दे। एंड आस्क द टाइम, फिर वो टाइम पूछते। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। डोंट स्टेयर सो कीजिया, स्टेयर मीन्स टू लुक फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब वो जब उन्हें देखती है, अपने फादर को ऐसे स्टूल पे बैठ के देख रही होती सीरियसली, तो उसके फादर मजाक में उसको कहते हैं कि डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह घूर कर मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, ऐसे लगता है जैसे कोई छोटा सा भूरा उल्लू देख रहा हो। सो एट दिस टाइम ऑल्सो शी यूज्ड टू बी अफ्रेड फ्रॉम हर फादर। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. तो उस समय क्या हुआ कि one day, एक दिन, when she was kept indoors with a cold. What does it mean? Kept indoors means kept inside the house with a cold. Actually she was suffering from cold and she was not sent to school on that particular day, and she was inside the house, and that day her grandmother told her that father's birthday was next week. दादी माँ ने उसे बताया कि अगले हफ्ते फादर का बर्थडे है। एंड सजेस्टेड, और फिर सजेस्ट भी किया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि वो उनके लिए एक पिन कुशन बना सकती है। पिन कुशन क्या होता है बेटा? एक ऐसा कुशन टाइप में चीज़ ऑफ एनी शेप, फॉर एग्जाम्पल दिस शेप, एनी कुशन टाइप ऑफ थिंग इन विच पिन्स कैन बी हैड
जनरली आप पेन्स को कहीं पर रखेंगे तो कैसे रखेंगे, वो कहीं पर गिर सकते हैं, उनको फ्लैट नहीं रख सकते, तो वो एक कुशन से में उसको घुसा दिया जाए। ऐसा कुशन बनाने के लिए उसने उसकी ग्रैनी ने उसको सजेस्ट किया कि तुम एक पिन कुशन बना दो आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। एक सुंदर सा सिल्क का कपड़ा भी उन्होंने उसे दिया जिससे वो उस पिन कुशन को बना ले। लेबोरियसली with hard work, with great efforts and difficulty, with a double cotton. The girl stitched 3 sides. अब जब वो येलो सिल्क मिल गया उसको, तो उस लड़की ने क्या किया, डबल कॉटन का क्लॉथ काटा, उस पर सिल्क का कपड़ा, इसके ऊपर वो कॉटन लगाया, एंड द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, और उसने उसके 3 साइड्स को कट कर दिया। अब जैसे ये पिन कुशन उसने बनाने के बारे में सोचा, तो उसने पहले 3 पीसेस लिए, 2 पीसेस येलो सिल्क के, फिर उनके दोनों साइड पर उसने कॉटन लगाया, फिर उसने इधर से 3 साइड से उसको स्टिच कर दिया। 3 साइड से स्टिच करने के बाद उसे लगा कि अब इसके अंदर कुछ क्या है, बट व्हाट टू फिल इट विद। अब ये खाली, इसके अंदर तो हम पिन्स को नहीं घुसा सकते, तो इसके अंदर कुछ भरना पड़ेगा। तो दैट वाज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आया कि अब मैं इसमें क्या भरूं। द ग्रैंडमदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जिस समय उसके दिमाग में ये बात आई, उस समय द ग्रैंडमदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर थी गार्डन में, एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम। और जब उसे कुछ नहीं समझ आया तो वॉन्डर्ड मीन्स वेंट इनटू बाय चांस। वॉन्डर मीन्स वैसे तो गो एमलेसली, बस। तो बस यूँ ही घूमते घूमते वो मदर्स रूम में पहुंच गए टू लुक फॉर स्क्रैप्स। और किस लिए पहुंच गए, टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर, कि कुछ छोटे छोटे पेपर के या किसी कपड़े के मिल जाएं पीसेस उसे, तो वो अपने इस केस को फिल कर दे। ऑन द बेड टेबल she discovered a great many sheets of fine paper. अब वो ढूंढने गई थी कुछ भरने के लिए, कोई स्क्रैप्स मिल जाए, लेकिन ऑन द बेड टेबल, वहाँ पर जो टेबल के पास, बेड के पास जो टेबल रखी थी, शी डिस्कवर्ड मीन्स फाउंड, उसे मिल गया क्या, अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, कई सारी सुंदर सुंदर फाइन पेपर, अच्छे से पेपर की शीट्स मिल गई। गैदर्ड दैम, गैदर्ड मीन्स कलेक्टेड, उसने उन्हें इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, टीयर की सेकेंड फॉर्म है टोर, तो उनको छोटे छोटे पीसेस में उसने टीयर किया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसे अपने केस को भर दिया। स्टफ्ड मीन्स फिल्ड, उसको भर दिया। देन स्यूड अप द 4th साइड, और फिर उसने 4th साइड को स्यू कर दिया, स्टिच कर दिया, और इस तरह से उसने अपना पिन कुशन तैयार कर लिया। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry in the house. What is the meaning of hue and cry? Hue and cry is angry protest. शोर शराबा सुनाई देने लगा घर में। Father's great speech for the port authority had been lost. और वो शोर शराबा क्यों हो रहा था? फादर्स ग्रेट स्पीच, फादर ने कोई बड़ी सी अच्छी सी स्पीच लिखी थी, किसके लिए, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी में जो उन्हें देनी थी, एंड हैड बीन लॉस्ट, और वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स को बुला के सवाल जवाब किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केशियाज रूम, और फाइनली जब कहीं नहीं मिला तो मदर केशिया के रूम में आई। केशिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room.
और मदर ने केजिया से आके पूछा, केजिया मुझे लगता है कि तुमने हमारे रूम में कुछ पेपर्स नहीं देखे थे। अब उन्हें लगता है, उसकी मदर को लगता है कि बिटिया ने उन पेपर्स को देखा ही नहीं है, बस वो जस्ट पूछने आ गई हैं उससे। Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. और उसने, बच्ची को पता तो था ही नहीं कि वो क्या चीज़ है, तो उसने कहा हाँ मैंने देखा था और मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ डाला। What? Screamed mother. Scream means shriek, cry loudly. उसकी मदर बड़ी ज़ोर से चिल्लाई, What? Come straight down to the dining room this instant. कम स्ट्रेट, सीधी आ जाओ कहाँ पर, डाउन टू द डाइनिंग रूम में, दिस इंस्टेंट, इसी मोमेंट। अब उसकी मदर उस पर स्क्रीम कर रही हैं, उस पर चिल्ला रही हैं, किस लिए? क्योंकि शी हैज़ टॉर्न द इम्पॉर्टेंट शीट ऑफ हर फादर। And she was dragged down to where father was. और जब इतनी ज़ोर से डांट पड़ी तो वो आना नहीं चाहती थी। So she was dragged down. Dragged down means pulled down. खींच कर लाया गया उसको। To where, कहाँ पर? उस जगह पर where father was pacing to and fro. Pacing means moving. To and fro, backward and forward. जहाँ पर उसके फादर इधर उधर टहल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ उनके पीछे बंधे हुए थे। वेल, ही सेड शार्पली। शार्पली मीन्स शार्प मीन्स क्या होता है? तेज? नहीं, यहाँ पर शार्पली मीन्स एंग्रीली। तो उसके फादर ने गुस्से से उसे पूछा, वेल, मदर ने एक्सप्लेन की सारी बात। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्चे को घूर के देखा। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ऐसा किया? नो, शी विस्पर्ड, और बड़ी धीमी धीमी आवाज़ में विस्पर मीन्स स्पीक इन ए लो वॉइस, बड़ी धीमी धीमी आवाज़ में लड़की ने कहा, नो 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 नो। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड इज़ पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और उसके फादर ने कहा कि माँ, ऊपर जाओ उसके कमरे में और उस चीज़ को नीचे लेके आओ। डैम थिंग मीन्स cursed thing. Damn means cursed. Something that is not good. कि वो जो बकवास चीज़ है उसको उठा कर लेके आओ। एंड सी दैट, और फिर उन्होंने कमांड दी, उन्होंने आदेश दिया, और ये देखो कि चाइल्ड इज़ पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, कि इस बच्ची को अभी की अभी इसके बिस्तर पे पहुंचा दो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain. Crying too much. बहुत ज़्यादा रो रही थी वो बच्ची। किस लिए? To explain, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना चाहती थी, अपनी बात बताना चाहती थी। She lay, वो लेटी रही, पड़ी रही, इन द shadowed room, उस shadowed room में। shadowed room means full of shadows। उस, क्योंकि लाइट नहीं चल रही है तो अंधेरे वाला कमरा लग रहा था, उसको छाया वाला कमरा लग रहा था। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, अब इवनिंग लाइट थी तो वो धीरे धीरे और हल्की होती जा रही थी और शेडोज़ बढ़ती जा रही थी। और मेक अ सैड लिटिल पैटर्न, मेकिंग अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पर क्या वो इवनिंग लाइट है वो सैड हो रही है, या वो पैटर्न सैड हो रहा है? क्या सैड हो रहा है? सैड तो वो गर्ल हो रही है ना,
क्योंकि उसके साथ ऐसा हो गया कि उसके फादर उससे एंग्री हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कहा है सैड लिटिल पैटर्न, लिटिल भी वो बच्ची है और सैड भी वो बच्ची है, और ये पैटर्न जो ऑन द फ्लोर बन रहा है। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया है, जहाँ पर गर्ल का जो एपिथेट है, जो एडजेक्टिव है, वो पैटर्न पर लगा दिया है। Then father came into the room with a ruler in his hands. और फिर फादर उसके रूम में आए और उनके हाथ में एक रूलर था, एक स्केल था। I am going to beat you for this, he said. और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। बच्ची पहले से ही उनसे डरती थी और फिर उस दिन उन्होंने उसकी पिटाई करने की बात कही। ओह नो नो नो, शी स्क्रीम्ड शाउटेड लाउडली, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी वो, नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और अपने आप को बेड क्लोथ में, जो बेड शीट वहाँ पर थी जिसमें ओढ़ने वाली शीट थी, उसके अंदर छुपाने की कोशिश करने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, और उन्होंने खींच कर उस बेडशीट को अलग कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, बैठ जाओ, उन्होंने ऑर्डर किया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हैंड्स को बाहर निकालो, ऐसे उन्होंने आदेश दिया, उसे ऑर्डर दिया। और वो छोटी सी बच्ची, उसकी रूलर से पिटाई होने वाली है। और क्यों पिटाई होने वाली है ये भी फादर बता रहे हैं। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। क्यों पिटाई की? क्योंकि वो कहते हैं यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल, कि हमेशा के लिए तुम्हें याद रहना चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसे नहीं छूना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन बच्ची भी अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि लेकिन ये सब तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और वो स्केल नीचे आया उसकी छोटी छोटी गुलाबी पाम्स पर, हथेलियों पर आकर पड़ा। आवर्स लेटर, और फिर वो जब रूलर से उसकी पिटाई हो गई, उसके घंटों बाद तक, when grandmother had wrapped her in a shawl, उसकी grandmother उसके पास आई and wrapped her in a shawl, और उसको एक शॉल में लपेट दिया, and rocked her in the rocking chair, और रॉकिंग चेयर में, जो झूलने वाली जो चेयर होती है, हिलने वाली चेयर होती है, उसके अंदर उसको रॉक किया, उसको झुलाया। and the child clung to her soft body, clung means stuck, hold tightly, वो उसकी बॉडी से चिपक गई, अपनी दादी माँ से चिपक गई वो बच्ची। और what did God make fathers for, she sobbed, और रोते रोते उसके मुंह से आवाज़ निकली, उसने थोड़ा सा सिसकी ली और बोला what did God make fathers for, भगवान ने फादर बनाए किस लिए हैं। बच्ची इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है, इतनी अपसेट हो गई है इस सारी इंसिडेंट से, कि उसे लगता है कि ये फादर होते ही किस लिए हैं जब ये इतना डांटते हैं, इतना लड़ते हैं। तो Here is a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep। और दादी माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की, उसे पैसिफाई करने की कोशिश की। शी सेड हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, कि माय डियर बेबी, प्यारी बच्ची, हियर इज़ अ क्लीन हैंकी, एक हैंकी है, लो साफ़ सुथरा। ब्लो योर नोज़, अब तुम्हारी नोज़ जो है क्लो, एक तो उसको कोल्ड वैसे ही हो रहा था और ऊपर से अब उसकी पिटाई हुई है, वो रोई है, तो उसकी नोज़ में स्टफ्ड हो गया है। तो उसको बोला कि अपनी नोज़ को ब्लो करो, साफ़ करो। गो टू स्लीप, और सो जाओ पेट डियर चाइल्ड, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट, तुम इस सब के बारे में भूल जाओगी इन द मॉर्निंग, कि सुबह जब होगी तब तक तुम सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, और वो बच्ची क्या कहती है कि आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने
फादर नहीं, मदर ही कहती हैं कि मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत अपसेट था, इसलिए उसने मेरी बात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन वो बच्ची, जैसे दादी माँ तो उसे समझा रही थी कि तुम कल भूल जाओगी, लेकिन वो बच्ची कभी इस इंसिडेंट के बारे में नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. Next time, अगली बार जब भी वो अपने फादर को देखती तो she quickly put both hands behind her back, जल्दी से अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाती, पीठ के पीछे कर लेती, और ए रेड कलर फ्लश फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसका चेहरा एकदम से फ्लश्ड हो जाता, उस पर गुलाबी हो जाता उसका चेहरा डर के मारे। And today we pause this lesson here. We shall continue the remaining part of this lesson in the next session. Read. I hope you have understood up to where we have read, and you will reread the lesson, find out the difficulties in them, and if you have any queries, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day. Goodbye.